दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो रहेगा एनवायरमेंटल साइंस पर। बेसिकली environmental science is very important for our environment conservation, sustainability and biodiversity nature. So it is basically a part of that, but it is very important for the exam point of view. If you are preparing for NDA, and if you are preparing for sorry, SSC, JEE, NEET, and many other examinations, that means police, UP police, and other examinations, UP PCS. So there could be chances of coming the questions from here. So be with us. We will till the end. So in this lecture, we will detailedly discuss everything in this topic. Okay, the topic is ozone and its conservation. Ozone layer and its conservation, and what is the role of ozone in the conservation of different ecological factors we have. Okay, and how the ozone is depleting day by day. So we are saying that, just a second, I am showing you the PDF. The first visitor can hit the bell icon so that everything could be right. Okay, आप सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओ, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा. So here is the PDF. Here is the PDF. Around us, a layer of air is present. A layer of air is present around us. In this, we can say the total air which is around us is 100%, and in that we have 78% of nitrogen. Okay, and one is oxygen. The another is in which 0.03 is carbon dioxide. Argon is 0. And other gases 0.4, that is helium and other things. Ozone layer, ozone layer part of stratosphere. So we will discuss this at or 6 minutes. Okay, नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करेंगे 78% होता है. So in that scenario we can say our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Okay, atmosphere is the huge blanket of air which they makes the all around us 360 degree में आपको एक huge blanket air का provide किया गया है, and it is for the atmosphere. All the living beings on this earth on the atmosphere for their survival. It provides us the oxygen we are breathing in, and it will protect us from harmful sun rays. Okay, जो air है प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द सन्स रेज, ultraviolet rays. So it is ultraviolet rays. Okay, ultraviolet rays. In that ultraviolet rays, we can have protection from the of the sun rays. ठीक है, UV3 rays कहीं ना कहीं UVC rays जो है वो वहां पे आपको परेशान, कैंसर वगैरह इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, वो करेंगे बात. We would be lived alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. It is the mountain that has made the temperature on the earth livable. यानी कि एयर ही है जो तापमान को कंट्रोल कर रही है, जिससे ये पूरी पृथ्वी हमें रहने लायक बन जाती है. समझ रहे हो? चलिए कुछ और चीजें यहाँ पे समझेंगे. अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर, main gases around the atmosphere, which is nitrogen, oxygen, and two other gases, carbon dioxide, helium,
ओजोन, ओजोन इज द मेन इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। Argon, hydrogen are the lesser foundable. So in this we have some tiny dust particles which are also residing in the. Okay, pie chart is giving you the correct information about this. Okay, so nitrogen, what is nitrogen? Is the most plentiful in the air. सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, ठीक है। We take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जो है प्लांट के लिए अगर हम देखें, प्लांट आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, प्लांट आर वेरी डिपेंडेड ऑन द nitrogen gas for their development and other things. Okay, survival, development, growth and development, all the things are totally dependent on the nitrogenous compounds होते हैं, दिया होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है प्लांट्स का। अब कुछ और देखते हैं। क्या आप जानते हो दोस्तों कि है वो एटमॉस्फेयर को गर्म बनाए हैं, गर्म बनाए रखने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती है, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, द द अदर प्रॉब्लम ऑफ, होता क्या है, ग्रीन जो है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो टू लिव इन, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं बनाती है, अगर ना हो, तो वहां पर अर्थ जो है वो एक ठंडा प्लांट बन के रह जाएगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा ना। इट इज नॉट लिवेबल कार्बन डाइऑक्साइड इज। सो हम बात करें कि heat retains increasing the temperature of the earth by the CO2 and the emission of CO2, carbon dioxide. This would turn into the effect which is carbon, and the global warming is increasing, rising the temperature. Different types of colder areas, coldest areas जैसे आर्कटिक है वगैरह है, ये पिघल रहे हैं, एंड क्या हो रहा है, सी लेवल है वो इंक्रीज, और इसके कारण जो है, जो जल इलाके हैं जैसे मुंबई है, गोवा है, ठीक है, तमिलनाडु है, केरला है, इस तरीके से हमारे भारत में वहां पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोस्टल एरियाज में आप देख रहे हो बहुत अधिक अधिक बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे रोकना चाहिए इस चीज को, ठीक है। आपको सीएफसी की पूरी कहीं ना कहीं चीजें को रोकना चाहिए, जिससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा मात्रा में रिलीज नहीं किया जाए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स जो कंट्रीज है हमारे आसपास की, तो क्लाइमेट हुए बातें करेंगे, क्लियर करेंगे सभी बातों को। देखो समझो, अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल के लिए बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो सोइल से रूट्स तक प्लांट जो है वहां पे रहता है, ठीक है, करता है, ठीक है, सोइल से एयर में कन्वर्ट कर देगा, एंड वहां से आप जो नाइट्रोजन है वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे अपने प्लांट्स भी होते हैं दोस्तों जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनटेक कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूट से वो जो मिनरल्स हैं वहां से नाइट्रोजन लेते हैं। आप खेतों में डीएपी, यूरिया डालते हो, वहां से उनको नाइट्रोजन मिलता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट प्लैनेटिफुल गैसेज है इन द एयर। ह्यूमन एंड एनिमल जो हैं दोस्तों, ये हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है, ऑटोट्रॉप्स जो है, वो भी ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे बेटा, क्लियर है।
सो यहाँ से एक बैलेंस क्रिएट रहता है ऑक्सीजन के लिए हवा में, जो कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। जितना आपने खींची उतना प्लांट्स ने बना दिया। बट ये क्या है, ये अभी जैसे हम जंगल वगैरह काट रहे हैं, वी आर गेटिंग डिफॉरेस्टेशन, इंडल्जिंग इन डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज पॉपुलेशन दिन पे दिन इंक्रीज कर रही है। और उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण आप देख पा रहे हो कि जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है। ठीक है, अगर आप एफोरेस्टेशन नहीं करेंगे, एफोरेस्टेशन होता है प्लांटिंग द ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन का कंटेंट घट जाएगा एटमोस्फियर में, और आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात समझ रहे हो। अगर हम बात करें कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और हम बात करेंगे कि ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जो हम वहां पे भी ऑक्सीजन वहां पे भी ऑक्सीजन तो हम इनटेक करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही एनिमल्स, बातें समझ पाएगी नहीं, कहां तक क्लियर हुआ? लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, तो द बैलेंस इज upset by burning of fuel. We are having such fossil fuels, coal, diesel, and acid, and the other things. Okay, vehicles. We have the fossil fuels. We are day by day. The burning of the fossil fuel is increasing. Okay, so in that billion of ton, they will add billion of ton of carbon dioxide into the atmosphere each year. हर साल करें तो बहुत बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एड ऑन होती जा रही है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो रही है। और ये क्या कर रहा है, ये प्रभावित कर रहा है हमारे पूरे पृथ्वी के वायुमंडल को, और उसकी पूरी जो क्लाइमेट कंडीशन है उनको। क्लियर पा रहे हो कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? आइए कुछ और समझते हैं। कह रहा है एयर इज हीटेड, जब एयर गर्म होती है दोस्तों, ये एक्सपेंड करती है, और इसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीजें बात करेंगे, जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है, वो फिनोमिना क्रिएट करते हैं। ठीक है, रात के समय जो धरती है वो ठंडी हो जाती है, तो हवा समुद्र की तरफ जाती है, इसको कहते हैं ओके। और एक और तरीका होता है, मतलब दिन के समय जो है जल जल का सतह जो है ठंडी होती है, तो जल की सतह ठंडी वाली गर्म की सतह के ऊपर जाएगी, इट इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके, वहां पर आप सर्कुलेशन करोगे, किसका? एयर का सर्कुलेशन होता है दोस्तों, ये बात आपने समझी होगी। अब यही सब जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एनसीईआरटी ने, कि different types of cases are only we are seeing this. Okay, global warming, sun screen likely thinned. ग्लोबल वार्मिंग है, इस वजह से ओजोन की परत हो रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। हम जुरासिक एरा में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, एरा में आ रहे हैं। ठीक, was warmed on the record, यूएस कह रहा है, एक अखबार है इसकी, ठीक है, वो क्लियर कर रहेगा। तो ये सब बातें क्लियर करने में बहुत अच्छी बातें हैं। देखो, ये न्यूज दे रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की तरफ से ये पूरा स्क्रीनशॉट लिया गया है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, हम बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे पिछले हुआ था, पिछले केसेस में। अब भी अगर हम नहीं समझे, अब भी अगर हम सजग नहीं हुए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियो होंगे, और वहां पे आप स्कूप से समझते हैं 5 layers, that is called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere। देखो इसका फिगर अभी आपको दिखाते हैं कि अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके पूरा एक सिनेरियो है, कि सबसे नीचे जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर होगी। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है वो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक की रेंज में होता है। क्लियर है दोस्तों?
समझ आया? अगर हम बात करेंगे तो इसके ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर उसके जस्ट 10 किलोमीटर से 45 किलोमीटर से, ठीक है, 50 किलोमीटर कह सकते हैं, 50 किलोमीटर तक की रेंज में आप ये देख पाओगे कि स्ट्रेटोस्फियर का रेंज है जो ब्लूइश है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंडिकेट हियर। ये आपका ट्रोपोस्फियर का है, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर का है, ठीक है। अगर हम बात करें मेसोस्फियर की, तो 50 किलोमीटर के ऊपर 80 किलोमीटर तक जाने पर आपको मेसोस्फियर मिलता है, ठीक है। और हम जो ओजोन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, फॉर vegetation, for the earth atmosphere, so it is residing in the stratosphere। लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसमें ही ओजोन मंडल होता है, ओजोनोस्फियर होता है, ठीक है। यहीं पर आपके वायुयान भी उड़ते हैं, एरोप्लेन भी उड़ते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मीजोस्फियर बताया 80 किलोमीटर तक होता है। अब हम चौथी लेयर पर चलेंगे जो कहलाता है थर्मोस्फियर, मतलब 70 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक की रेंज में अगर हम बात करें तो वो होता है थर्मोस्फियर। क्या होता है? थर्मोस्फियर होता है। और इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो कहलाती है बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फियर, ठीक है। 5 लेयर आपने यहाँ पर देखी। क्लियर है? बातें समझ आया? ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है सभी बातें? तो इसको समझेंगे जो है हाइट जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रोपोस्फियर की रेंज होगी, ठीक है। ऐसे ही करके हम ट्रोपोस्फियर की रेंज को देख सकते हैं। नहीं, तो जितने भी रेनफॉल है, फॉग है, हिल स्ट्रोम है, मतलब हिल स्ट्रोम मतलब जो आपकी क्या अ, ओले ओले की बारिश जो है वो इसी लेयर में होती है, ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रीजन, वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, स्ट्रेटोस्फियर के लिए अगर हम देखेंगे तो 50 किलोमीटर तक की हाइट पर जाने पर आपको जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर की लेयर मिलेगी वो कहलाएगी स्ट्रेटोस्फियर। क्लाउड की कंडीशंस है, क्लाउड का बनना है, वेदर कंडीशंस है, वेदर का बनना है, तो ये सब आपके स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। इसके अलावा हम फ्लाइंग एरोप्लेन की फ्लाइंग की बात करें, जहाजों की उड़ने की बात करें, तो यहीं पर आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोन गैस इन दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड ozonosphere, and it will protect us from the harmful UV rays emitted by the sun। ओके, बातें क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस बात को। आइए चलिए थर्ड में देखेंगे, मीजोस्फियर। मीजोस्फियर इज द थर्ड लेयर present in the atmosphere and it is extended up to the height of 80 किलोमीटर। एंड मेटेरॉइड्स मतलब जो छोटे छोटे तारे हैं वो कहीं कहीं टकरा कर कुछ कुछ बर्न हो जाते हैं, ठीक है, कुचल तारा है, मेटेरियोट्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कभी कभी जल जाते हैं और जलने पर ये जो है स्पेस में जलते हैं। मीजोस्फीयर में ये सब होता है, ठीक है। अगर हम थर्मोस्फीयर की बात करें, द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ये बहुत ऊपर होती है। थर्मोस्फियर मतलब थर्म से रिलेटेड है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके टेम्परेचर की, देखो समझो, जैसे फोर्थ फोर्थ लेयर इट इज, तो यहाँ पे आप जो है 80 से लेकर 400 किलोमीटर। अगर हम बात करें जो शॉर्ट रेंज सिग्नल्स हैं यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन है, इसके अलावा हम बात करेंगे अपने सैटेलाइट है 3600 किलोमीटर, ठीक है, वहां पे सैटेलाइट को हम पे इसी मंडल में लॉन्च करते हैं। जियो स्टेशन सैटेलाइट जो है 36 किलोमीटर की रेंज होती है, 36 किलोमीटर घूमता है। अगर करेंगे दोस्त कि ये अर्थ की लेयर के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो जो है रेडियो ट्रांसमिशन यही होता है। ट्रिपोस जो ये क्या है, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सो
बात करेंगे, देखो एग्जोस्फीयर के लिए बात करेंगे तो एग्जोस्फीयर के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे बड़े मंडल, सबसे बाहरी वो कहलाता है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर में आप देखो जो हवा है बहुत लाइट जो है, लाइट गैसेस को हाइड्रोजन, ठीक है, स्पेस में तैरने लगती है समय, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और तो आप देखोगे जो दिन है, नोट डाउन द 10 डेज रिपोर्ट एंड लोकल न्यूज़पेपर से ये है। और आप देखोगे वेदर कंडीशंस कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। इट इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट कंडीशंस, वेदर कंडीशन, ठीक। वेदर जो है, क्लाइमेट जो है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है, बात करेंगे इस पर भी। जब सूरज गर्मी वाले दिन होते हैं तो क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, उस केस में समझ पा रहे हो, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई डे टू डे कंडीशन से ही रीजन जो है, एक एरिया में पानी बरसा तो वहां की क्लाइमेट कंडीशंस में कोल्डनेस आएगी, ठीक है दोस्तों। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली टुडे, है ना, ये ऐसे मान लीजिए कि क्या करता है, वो क्या है, हर दिन चेंज होता रहता है इससे, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना है, मौसम विज्ञान बना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑन द डे, ऑन द conditions, they very much aware about the weather forecast, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए वहां पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसको हम मौसम विज्ञान कहते हैं, वहां पे समझ सकते हैं, ठीक है। और समझिए कि अगर हम पूरी सूरज की एनर्जी को देखें तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर केवल एक पार्ट जो है, केवल एक पार्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें करोड़ पार्ट में एक पार्ट केवल सूरज का पृथ्वी तक, ठीक है। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। टेम्परेचर है तो अगर हम बात करें थर्मो, वहां से आप रेज कर सकते हो, रीड कर सकते हो एटमोस्फेयर में कितना टेम्परेचर है, कितना गर्मी है आज या कितनी ठंडी है, वो चीज यहाँ से नोट सकते हैं। नेक्स्ट, बैरोमीटर। बैरोमीटर का डिवाइस होता है जो प्रेशर को मापता है। इसके अलावा रेन गेज जो है वो है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, कितनी होगी, कितने परसेंट, रेन गेज बताता है। इसके अलावा विंड वेन है, वो डायरेक्शन ऑफ विंड दिखाती है। आपने मुर्गा देखा होगा, मुर्गे में चार डायरेक्शन होंगी, मुर्गा वहीं पर जाता है जहाँ पे आवाज आती है। तो ये क्या है, ये विंड वेन है, जहां से आप पता कर सकते हो डायरेक्ट क्या है विंड, समझ पाए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, एक तरीके की टेम्परेचर कहाँ पर कितना है, ठीक है, पर कितना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंसोलेशन कहलाता है। जगहों पर अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के लिए अगर हम बात करेंगे तो ओजोन लेयर, ओजोन जो है, ओजोन लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है, ये एक तरीके की हवा पे चलती है, इसको हम लेक्चर में लेंगे। बट यहाँ पे अभी ओजोन, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर यू, लेट मी शेयर माय अनदर पीडीएफ, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। So here is the PDF, okay.
NCERT, and in that we have some other things. देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर में आप देखोगे कि जो है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या था, ओजोन लेयर थी। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो जैसे जैसे वायुमंडल में भेजती हैं, वायुमंडल आती हैं अर्थ सरफेस पर, तो वहां पर कुछ ओजोन लेयर जो है वो बैरियर का काम करती है, एब्जॉर्बर का काम करती है, और जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको यानी कि आगे तक नहीं आने देती। बात समझ रहे हो? इट वुड एब्जॉर्ब द होल द थिंग्स। क्लियर है बात? कि अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ चीजों की, तो ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। अब बात करेंगे कि ओजोन की जो मोटाई है वो किससे मापते हैं? डॉप्सन एक यूनिट होती है, उससे हम ओजोन की मोटाई मापते हैं। अगर हम तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन होता है, हम बात, इसका फॉर्मेशन होता है ऑन, मतलब ऑक्सीजन गैस है, ये जब लेसेंट ऑक्सीजन से इन के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो ये O3 बना लेती है, ओजोन देती है। O3 माने ओजोन के कंपाउंड कह सकते हैं, O2 माने ऑक्सीजन, एंड O माने नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है। कभी भी ऑक्सीजन सिंक, मतलब ऐसे ही O के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करेगा दोस्तों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस कि ओजोन जो है लेसेंट ऑक्सीजन है, केबल होता है, है उनके साथ रिएक्ट करके O3 मॉलिक्यूल बना लेता है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक गुड ओजोन होता है जो स्ट्रेटोस्फीयर जाता है, एक बैड ओजोन होता है जो पॉल्यूटेंट का काम करता है, पॉल्यूटेंट होता है, प्रदूषक होता है, जो ग्राउंड में पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे, समझो ध्यान से। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर की, तो 50 किलोमीटर की रेंज में ट्रोपोस्फियर होता है, एक्सटेंड किए हुए है। अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर जो है वहीं पर रहती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम तक आने में शील्ड का काम करती है, और ये दुनिया में जितने भी लाइफ है उसको बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करें कि ये ओजोन लेयर, देखो ध्यान से, ओजोन लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे समझोगे ओजोन लेयर कैन बी कंट्रोल द अल्ट्रावायलेट केसेस। होता क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेली लाइफ कर रहे हैं, एक्टिविटीज जो यूज कर रहे हो आप, एसी आप में आ रहे हैं, नेफ्रोन वहां पे भरी जा रही है, लिक्विड लिक्विड करके नाइट्रोजन भरी जा रही है, जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, तो वहां बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे परफ्यूम का इस्तेमाल, एसी का इस्तेमाल करना, और लार्ज अमाउंट ऑफ कटिंग द ट्रीज, तो ऐसे एनहेंस करते हैं सीएफसी को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ O3 लेयर, ओजोन लेयर। ठीक है, धीरे 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 हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कम होती जा रही है ओजोन लेयर की जो मोटाई है, जिसको डॉप्सन से मिल पर भूवैज्ञानिकों ने ये पूरा, अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये पता लगाया है जो ओजोन की लेयर है वो धीरे धीरे उसकी मोटाई कर रही है, और अंटार्कटिक रीजन में जो आइसबर्ग है या ग्लेशियर, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं दोस्तों। ये हमारे बहुत बड़ा खतरा है, जो अभी तक देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक और बात कि यहाँ पर अगर बात करेंगे ओजोन की, तो इसके लिए गवर्नमेंट देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हुई जहां पर इन्होंने ओजोन के लेयर को डिप्लीट होने से रोका है, जो है ओजोन का होल है।
डे एक इम्पोर्टेंट डे है जो हम 16 सितंबर को हर साल मनाते हैं। ओजोन की रक्षा के लिए एक दिवस डिसाइड किया गया है जिसको ओजोन डिप्लीशन डे कहते हैं, यानी कि ओजोन का 6 दिवस कहते हैं। वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉलिसी कंट्रीज के बनाई गई है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर है गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप करेंगे, काम करेंगे ध्यान से समझ के, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए, ठीक है, तो यार आप समझिए कैसे क्या इसके बहुत सारे निवारण है। और तब क्या होगा, ओजोन लेयर अगर जैसे नहीं है, पूरे वायुमंडल की हम बात करें, ओजोन लेयर जैसे खत्म हो जाए तो क्या करोगे? ये देखो, आप स्किन कैंसर से जो वेजिटेशन है इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, ये पूरी वेजिटेशन जो हरी भरी दुनिया आपको दिख रही है ये खत्म हो जाएगी, कहीं पर भी कुछ नहीं रहेगा। देयर कुड नॉट बी अ सर्वाइवल, देयर कुड नॉट बी अ लाइफ परसेंटेज। आपकी पूरी पृथ्वी जो है वो मरुस्थल बन जाएगी, वो पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब लाइफ नहीं बचेगी, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट नहीं बचेंगे दोस्तों, ठीक है, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि भारत जो है या पूरी अर्थ जो है, पृथ्वी है, ये यहाँ पर जीवन संभव हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और बात आप देखोगे, इसमें एक मीजोपॉज भी होता है। और यहाँ पर आप देखो कि आयनोस्फीयर है, आयंस फॉर्म होते हैं। आयंस जो फॉर्म होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स जो शॉर्ट रेंज वेव होती हैं, ये पृथ्वी तक हमारी बातों को, अर्थ के पूरे लेयर की वजह से, यहाँ पे आप देखो कि इस मंडल में इस जो लेयर है या जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, या फिर हम बात करें मेसोस्फीयर में, ये चीज ठीक है। सभी चीजों के लिए सिग्नल्स हैं, कर सकते हैं। डीटीएच में सिग्नल्स देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप कुछ और चलाते हो, आप पूरे फोन चलाते हो, नेटवर्किंग का पूरा सिस्टम है, ये सारा डिपेंडेड है आयनोस्फीयर पर और रेडियो वेव्स पर जो शॉर्ट रेंज वेव है आपको काम करती है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, एक चीज को बहुत ही विस्तारित तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। फिर भी अगर कोई समस्या है अपना कमेंट मैं स्वयं दूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत एक एक चीज को डिस्क्राइब करने का प्रयास रहा है मेरा, और समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए, देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन 78% होगा, और रेस्ट ऑफ द गैसेस, यहाँ पे अगर विजन की तो 21% है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर आर्गन की बात करें तो माइन्यूट गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% के आसपास है, ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो कह रहा है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर बीइंग इज व्हाट? है ट्रिपोस्फेयर, ठीक है। ट्रिपोस्फेयर में हमने बात करी थी कि ये जितने भी कंट्रीज हैं, मतलब भारत है या फिर और सारी कंट्रीज हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे ट्रिपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें सॉल्ट की, जो पोलन है या ऐश है या है, ये पार्टिकल्स हैं, ये पॉल्यूटेंट का काम भी करते हैं दोस्तों, ये आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बात समझे? चलो आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन गैस इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, जैसे वैष्णो देवी, जैसे अमरनाथ है, हिमालयन रीजन है, माउंटेनियर्स भी होते हैं, तो ऊपर जाते हैं, हिल क्लाइंबिंग करते हैं, तो वहां पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कम होता चला जाएगा, लेने में हैरानी होगी, परेशानी होगी।
और वहां पर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की संख्या आपकी बॉडी, जिससे आपके नाक से खून आने लगे और इट इज वहां पे आप क्या करोगे कि ओजोन गैस को वहां मात्रा में पाओगे। अब ये क्या है, ये जैसे हम 100 किलोमीटर की रेंज में ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे ऑक्सीजन की लेयर कमी होती जाती है। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द गैसेस इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये देखो, ये एक ऐसा लेयर है जिसको हम ओजोन कह रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कह सकते हो, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का ही पार्ट है, ओजोन लेयर है। जो ओजोन लेयर है वो ट्रांसमिट करेगी, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ट्रांसमिट करेगी, ट्रांसमिट मतलब ऊपर भेजेगी, ठीक है, रिफ्लेक्टर का काम करेगी, आने नहीं देगी नीचे। तो आप ये देखो, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं जो आप कमेंट बॉक्स में इस्तेमाल करके लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर, ये आपको लिखना है, ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। व्हाट आर द एटमॉस्फेयर कंपोजिशन मींस व्हाट आर द एयर, व्हाट आर द गैसेस, ठीक है। व्हाई इज ट्रोपोस्फियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज द बेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। और कुछ दूसरे यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको दिखाना है एटमॉस्फेयर को, ठीक है, डिसाइड किया गया है और वहां पे उनकी रेंजेस के हिसाब से ये बातें आपको बहुत अच्छे समझ आएंगी। अच्छा लगा है तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कराता हूँ, दोस्तों बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की और अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जाइएगा नहीं, हम हिट करेंगे बेल आइकन, लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट है वो आपके सारे कमेंट जो दोस्तों प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उनसे हम सवाल आई होते हैं। बने रहेंगे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी और बेहतर करेंगे। बाय बाय एंड जय हिंद, मिलेंगे नए में, तब तक आप हम विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद टू ऑल, वंदे मातरम।